بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے ملک میں غداری کا، غدار کون ہے، الزام لگانے والے کون ہیں، کس نے کیا ہے، پرچہ کس نے درج ہوا ہے، یہ سلسلہ آج تیسرے دن بھی جاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 4 اور 5 اکتوبر کی درمیانی رات میں، رات کے 2:25 پہ شاہدرہ پولیس اسٹیشن لاہور میں ایک پرچہ درج ہوا۔ آج تیسرا دن ہے۔ وہ 16 وزراء، ایس اے پی ایم ایڈوائزر، کرائے کے اسپوکس پرسن، جو اس سے پہلے 4 دن سے کہہ رہے تھے کہ فلانا غدار ہے، فلانا غدار ہے، فلانا انڈین ایجنٹ ہے، آج وہ سارے غائب ہیں، آج وہ نظر نہیں آتے۔ اب ایک نئی کہانی آئی ہے کہ ہمیں نہیں پتا یہ پرچہ کس نے درج کیا۔ یہ اب وفاقی وزراء بھی کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب سے منسوب کیا گیا کہ ان کو کوئی علم نہیں تھا اور بڑے ناراض ہوئے ہیں جب ان کو پتہ چلا ہے۔ تو ملک کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے کہ آٹا جو ہے وہ 75 سے 80 روپے کا بک رہا ہے۔ وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے کہ چینی 110 سے اوپر بک رہی ہے۔ وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے کہ بے روزگاری ملک میں عام ہو گئی ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے، اس کا بھی وزیر اعظم کو علم نہیں ہے۔ وزیر اعظم کو علم نہیں ہے کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے 2 سال میں اتنے قرضے لے لیے ہیں جو پچھلے 10 سال میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے نہیں لیے تھے، اس کا بھی علم نہیں ہے۔ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ سی پیک بند ہو چکا ہے۔ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آج ہم عالمی دنیا میں اکیلے ہیں۔ 4 دن اس وزیر اعظم کے وزراء لگے رہے، غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہے۔ آج پرچہ درج ہو گیا ہے، میری ان سے گزارش ہے پرچے میں شامل ہو جائیں، پرچے میں اپنا نام شامل کریں کہ ہاں ہم بھی گواہی دینے والے ہیں کہ فلانا آدمی غدار ہے، فلانا انڈین ایجنٹ ہے۔ آج پورا ملک رو رہا ہے، ہنس کون رہا ہے؟ ہندوستان اور مودی۔ جب دنیا کے سامنے ہم نے رکھا کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہندوستانی ایجنٹ ہے، ہم نے اس پہ پرچہ درج کر دیا، تو آپ کون سا مقدمہ کشمیر کا دنیا کے سامنے لڑیں گے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 سابقہ وزیر اعظم غدار ہیں، ہمارے ڈیفنس منسٹر غدار ہیں، ہمارے وفاقی وزیر غدار ہیں، ہمارے اسپیکر غدار ہیں، ہمارے گورنر غدار ہیں، ہمارے چیف منسٹر غدار ہیں، اور بات یہاں رکی نہیں۔ 3 لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جو پاکستان کے اہم ترین عہدوں پر رہے ہیں، ان کی قابلیت کا پورا فوج اور پورا پاکستان اعتراف کرتا ہے، آج وہ بھی غدار ٹھہرے۔ یہ بدنصیبی نہیں ہے اس ملک کی تو اور کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کہاں سے ملتا ہے، تاکہ میں بھی اپلائی کروں۔ وزیر اعظم رہنے کے بعد میں بھی اپلائی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دے دیں، کیونکہ غداری کا الزام تو ہم نے لگا دیا ہے۔ یہ افسوسناک باتیں ہیں، یہ حیران کن باتیں ہیں۔ آج کوئی وزیر عوام کی تکلیف کی بات نہیں کرتا، عوام کی مشکل کی بات نہیں کرتا، پاکستان کے مسائل کی بات نہیں کرتا، صرف غداری کے الزام لگانے پر، اور اب وہ بھی منہ بند ہو گئے۔ میرا ان کو چیلنج ہے، باہر نکلیں، ایف آئی آر میں شامل ہوں،
ملزمان کو گرفتار کریں اور پرچہ اور کیس چلائیں عوام کے سامنے کھلی عدالت میں. پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ یہاں کون سے غدار ہیں. غدار وہ ہوتے ہیں جو ہندوستان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. غدار وہ ہوتے ہیں جو کشمیر کا سودا کرتے ہیں. غدار وہ ہوتے ہیں جو سی پیک بند کرتے ہیں. غدار وہ ہوتے ہیں جو ملک کی معیشت تباہ کرتے ہیں. غدار وہ ہوتے ہیں جو عوام کو مشکل میں ڈالتے ہیں. آج غداری اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ مت باتیں، آج عوام کے مسائل حل کریں. یہ پی ڈی ایم اسی لیے بنی ہے، یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کے لیے نہیں بنی، یہ حب الوطنی کے اعلامیہ جاری کرنے کے لیے نہیں بنی. یہ صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے بنی ہے. میں اس ایف آئی آر کے قانونی پہلوؤں پر بڑی بحث ہو رہی ہے، مجھے اس بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بحث کبھی عدالتوں میں ہوئی تو ہو جائے گی، کیونکہ ایسے پرچے پاکستان میں پہلے بھی بنے ہیں، لیکن اس سطح کے نہیں بنے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو بھی شامل کیا. جو لوگ پاکستان کے اہم ترین عہدوں پر رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی، ان کو بھی شامل کیا، بغیر ثبوت کے شامل کیا. تو اب میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو پتہ نہیں ہے، چیف منسٹر کو پتہ نہیں ہے، وزراء کو پتہ نہیں ہے کہ پرچہ کون کرا گیا. اور پاکستان کا سب سے فرض شناس ایس ایچ او ہے، جس نے نہ رات کی تاریکی دیکھی نہ قانون دیکھا. ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں پاکستان کے وزیر اعظم پر، میں پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر، وفاقی وزراء پر، ایم این ایز پر، اور اس نے رات کے 2:25 پہ پرچہ درج کر دیا. اب میں بھی ایک پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں. میں بھی لاہور جا رہا ہوں، کل شاہدرہ جاؤں گا، میں بھی پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں. میرا پرچہ عمران خان کے خلاف ہے، جس نے، میں نے بھی ٹی وی پر دیکھا ہے کہ پاکستان کے ڈی جی ایف آئی اے، ایک فرض شناس پولیس افسر 35 سال کی سروس کے بعد ریٹائر ہوا ہے، اس نے کھلم کھلا ٹی وی پر کہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم نے بلا کر کہا کہ نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن صفدر، دوسرے افراد پر پرچے بناؤ، ان کو اندر کرو. اس نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ خواجہ آصف پر آرٹیکل 6 کا پرچہ بناؤ، غداری کا پرچہ بناؤ. یہ اب آپ کو سمجھ آئے کہ غداری کہاں سے شروع ہوئی ہے. جس آدمی کی ذہنی کیفیت یہ ہو، جس کو اپنے آئینی حلف کی پرواہ نہ ہو، وزیر اعظم کا حلف کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ جس کو آرٹیکل 62-63 کی پرواہ نہ ہو، جس کو اپنے عہدے کی پرواہ نہ ہو، جس میں اتنی ہمت ہو کہ وہ ہر قانون کو جھٹلائے، ایک اعلیٰ ترین سرکاری افسر کو بلائے اور اسے کہے کہ تم دوسرے لوگوں پر جھوٹے پرچے بناؤ، غداری کے پرچے بناؤ، ان کو اندر کرو. اس افسر نے کہا کہ آپ کے پاس نیب موجود ہے، یہ کام بڑا اچھا کر رہی ہے، آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آج یہ ظاہر ہو گیا کہ وزیر اعظم کے دعوے ہیں جی میں سب کو اندر کرتا ہوں، تو نیب اس کے قبضے میں ہے، یہ پرچے یہی بنا رہا ہے. شہباز شریف کو کس نے گرفتار کروایا؟ کون شہباز شریف سے خوف زدہ تھا؟ کون پی ڈی ایم سے خوف زدہ تھا؟ کون اے بی سی سے خوف زدہ تھا؟ پاکستان نیب کو 20 سال ہو گئے، کوئی شخص بھی ریفرنس فائل ہونے کے بعد گرفتار نہیں ہوا. یہ قانونی طور پر غلط بات ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. قانون کہتا ہے 30 دن میں ٹرائل کریں اور اس کو سزا دیں یا بری کر دیں.
गिरफ्तार करने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ, लीडर दी अपोजिशन पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर, APC के को चेयरमैन, उनको गिरफ्तार किया गया। इसका कोई जवाब है? अब DGFIA की बातों ने साबित कर दिया है कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सारा दिन सिर्फ अपोजिशन को दबाने के बारे में सोचता है, उनको गिरफ्तार कराने के बारे में सोचता है, उन पर गद्दारी के पर्चे कराने के बारे में सोचता है। तो ये बिल्कुल हकीकत है। ये सब बातें इस बात की दलील है कि शाहदरा का पर्चा भी इमरान खान ने दर्ज कराया है। अब 100 नफी करे, उसके वज़रा 100 कहानियां बनाए, इस सब के पीछे इमरान खान है। हम इसको चैलेंज करते हैं। अब सियासी मुकाबले आपने अदालतों में लड़ने हैं, आपने पर्चे बना के लड़ने हैं। क्या इन बातों से पाकिस्तान की अवाम की तकलीफ दूर होगी? इसका जवाब दे दें कि कौन सी तकलीफ दूर होगी। काबीना की मीटिंग में आज तक पाकिस्तान के अवाम की तकलीफ की बात हुई है? पर्चों की बात होती है, नवाज शरीफ को वापस लाने की बात होती है, दवाइयों की कीमतें बढ़ाने की बात होती है, गैस की कीमत बढ़ाने की बात होती है। आज तक पाकिस्तान के अवाम की तकलीफ दूर करने की बात नहीं हुई, उनकी बेहतरी की बात नहीं हुई। ये आज मुल्क के हालात हैं। इसीलिए PDM है और इंशाअल्लाह PDM जो है ये पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देगी। इन पर्चों से हम नहीं घबराते। हमारा तो खुला चैलेंज है कि सारे वफाकी वज़रा इमरान खान समेत शामिल हों इस पर्चे के अंदर, मुद्दई बने, गिरफ्तार करें तमाम मुल्जिमान को, खुली अदालत में पाकिस्तान के अवाम के सामने कैमरे लगाकर ट्रायल किया जाए, ताकि ये हकायक पता चले कि आज पाकिस्तान के वफादार पाकिस्तान बनाने वाले हैं, अवाम की तकलीफ रफा करने वाले हैं या अवाम को तकलीफ देने वाले हैं, मोदी की मदद करने वाले हैं, कश्मीर का सौदा करने वाले हैं, हिंदुस्तान को तकवीयत पहुंचाने वाले हैं। जितना मजाक पाकिस्तान का आज उड़ रहा है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान के अखबारात और TV भरे हुए हैं, यहां किसी को शर्म नहीं है। आपके अमल से ये पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, किसी को परवाह नहीं है। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया। सर आप जिस तरह आप उन्होंने गद्दारी का इल्जाम लगाया है, आपने भी वही सिलसिला शुरू किया है। मैं किसी पर गद्दारी का इल्जाम लगाता हूं ना, मेरे पास गद्दारी के सर्टिफिकेट है। मैंने तो हकायक बयान किए हैं कि जो मुल्क को नुकसान पहुंचाता है गद्दार वही हो सकता है। आपने जैसे शेड्यूल का ऐलान किया, सारी अपोजिशन ने कि हमारे जलसे इस तारीख को होंगे, अगर पूरी की पूरी क़यादत को गिरफ्तार कर दिया जाता है और बीच में अब आपने देखा होगा कि कोरोना भी तेजी से बढ़ रहा है, तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल बन जाती है तो फिर आपका क्या लाया? देखिए 22 करोड़ अवाम को गिरफ्तार कर लेंगे, तकलीफ में तो अवाम है। हम कोई अपनी सियासत करने तो नहीं निकले, हम कोई इक़्तिदार के असूल में तो नहीं निकले, हम तो निकले अवाम की मुश्किल के लिए। और कोरोना, अगर आप हुकूमत के जो नंबर देखें तो कोरोना तो पाकिस्तान में नहीं बढ़ रहा। सर ये बताइएगा कि आप पेट्रोलियम मिनिस्टर भी रहे हैं, ये बताइएगा कि LNG के इनको क्यों मंगवानी पड़ी है? क्या आप गंदम के बुरान के बाद कौम जो है वो गैस के बुरान के लिए तैयार हो रही है? जी, वो अंदिया आपको हमारे बेखबर वज़ीर-ए-आज़म ने दे दी है कि सर्दियों में ना गैस होगी ना गंदम होगी, और हम कुछ नहीं करेंगे उसको दूर करने के लिए। PDM में कोई इख्तिलाफात की खबरें हैं? पहला जलसा गुजरावाला में रखा गया है, मुस्लिम लीग नून का जो एक गढ़ है, लाहौर है, फैसलाबाद है, तो ये गुजरावाला का इंतखाब क्यों किया गया है? फिर भाई आपने जलसे की देखी है ना, 16 को गुजरावाला है, 18 को कराची में है मरकजी जलसा सूबाई दारुल हुकूमत में, 25 को मरकजी जलसा है सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में, और 22 तारीख को नवंबर को जलसा है सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में, 30 को जलसा है मुल्तान में, और 13 दिसंबर को जलसा है सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में। सर ये बताइएगा कि अभी आपने जो बात की है कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ पर्चा
दर्ज करवाऊंगा, ये संजीदा बात है या मुफ्ती साहब ने सिर्फ बयान की हद तक? मैंने जिंदगी में किसी के खिलाफ पर्चा नहीं दर्ज कराया, लेकिन अगर मुझ पर पर्चा दर्ज होगा झूठी बातों पर, तो ये तो एक सीनियर पुलिस अफसर बात कर रहा है, इस पर पर्चा नहीं, कार्रवाई तो होनी चाहिए, पर्चा दर्ज होना चाहिए। ये 62-63 का पर्चा है। ये जी कोई शख्स बदर रशीद से गुजारिश करूंगा, वो चला जाएगा, वो आदि पर्चे दर्ज कराने वाला। सर बताइएगा कि जिस तरह माजी में APMS की मूवमेंट हुई, अभी PDM की तमाम अपोजिशन जो है उधर इकट्ठी हो गई है, ऐसा तो नहीं कि तमाम अपोजिशन जब अपना जोर डालेगी और तीसरी कुव्वत को इंटरवीन करने का मौका मिलेगा, ना हुकूमत के हाथ कुछ रहेगा, ना अपोजिशन के हाथ कुछ रहेगा। तीसरी बात जो आजकल थ्योरी भी चल रही है सर, माशाल्लाह हम आइन से बाहर नहीं जा रहे, किसी को हक नहीं है कि आइन तोड़कर मुल्क में इक़्तिदार संभाल ले। वो ज़माने अल्लाह करे चले गए हों। इख्तलाफ सियासी होता है, जब हुकूमत सियासी इख्तलाफ को ये रंग देगी गद्दारी का, जब अवाम की बात करने को गद्दारी कहा जाएगा, जब मुल्क की तकलीफ दूर करने को गद्दारी कहा जाएगा, जब पार्लियामान को दबाया जाएगा, अपोजिशन पर पर्चे दर्ज होंगे, उससे मौका मिलता है तीसरी कुव्वतों को, माजी का सबक है, उससे मौका मिलता है। पॉपुलर एजिटेशन से, अवाम की तकलीफ बयान करने से किसी को हक नहीं मिलता कि वो मुल्क में आकर इक़्तिदार पर कब्जा कर। सर PDM में कोई इख्तलाफात की भी खबरें हैं, रोटेशन पॉलिसी के हवाले से और जलसों के हवाले से पीपल्स पार्टी को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी, मैं PDM का, मुझे उन्होंने सेक्रेटरी जनरल नामजद किया है, ये खबरें अभी तक मुझ तक नहीं पहुंची। सर मौलाना की और आज बीबी मरियम की मुलाकात है, आप भी उसमें होंगे, क्या एजेंडा होगा, क्या मामला डिस्कस होंगे? ये PDM के मामला डिस्कस होंगे। मरियम साहबा ने दावत दी थी, वो लाहौर में थे, वो खाने के लिए आ रहे हैं, वहाँ यकीनन सियासी गुफ्तगू भी होगी और PDM के आइंदा अमल पर गुफ्तगू होगी। क्लियर नहीं कर रहे कितने अरसे के लिए सप्ताह होंगे, ये होगा या रोटेशन पे होगा? ये एक नॉन इशू है, अभी तो PDM शुरू हुआ है, ये सब चीज़ें वक्त के साथ तय हो जाती हैं। सर ये बताइएगा, सर दूसरा सवाल आप उधर से ले रहे हैं, FIR के थाने में आप क्या समझते हैं कि ये FIR वापस हो सकती है? भाई मैंने तो नहीं दर्ज की ना, FIR दर्ज करता है वही वापस ले सकता है, और दलील है। देखें, हर चीज़ का एक खुरा होता है, कहाँ तक बात पहुँचती है। आपके सामने DG FIA ने कहा कि मुझे 1.5 साल पहले इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने बुलाकर कहा कि पर्चा दर्ज करो, नाम लेकर नाम बताए। एक ख्वाजा आसिफ को बताया कि इस पर आर्टिकल 6 का पर्चा दर्ज करो। ये हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की सोच है, तो मुझे तो उसकी बात पर यकीन नहीं आएगा कि मैंने पर्चा नहीं दर्ज कराया। मैं तो यकीन करता हूं इस बात पर कि ये हुकूमत, ये प्राइम मिनिस्टर, इसके वज़रा, इसके चीफ मिनिस्टर शामिल हैं इस पर्चे के अंदर। अच्छा शाहिद साहब ये बताइएगा कि आपकी अपनी जमात के अंदर तमाम लोग जो है एक बयानिए के ऊपर, एक मौक़िफ़ के ऊपर मौजूद नहीं है, जिसकी एक दलील तो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आना आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से, और जिसको साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि उन्होंने किसी की ईमा पर यह बयान दिया था। तो दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर शहबाज शरीफ का जो बयानिया है मुफाहमत का, या एक किस्म का जो तसादुम की से बचने वाला, क्या अब वो ख़त्म हो चुका है, उस पर फुल स्टॉप लग चुका है, या अभी भी कोई ना कोई ऐसा पॉसिबिलिटी निकल सकती है कि दोबारा नेगोशिएशन हो सके? क्योंकि सियासत जो है वो बंद गली से रास्ते तलाश करने का नाम है, ना कि आप खुले मैदान से सीधा बंद गली की तरफ चले जाएं। आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। देखिए, गुजारिश ये है, बयानिया PDM का ये है कि अवाम जो इमानत वोट की सूरत में आपके हवाले करते हैं उसमें ख़यानत ना हो और मुल्क आइन के मुताबिक चले। इससे किसी पाकिस्तानी को इख्तलाफ नहीं है, किसी पाकिस्तानी को इख्तलाफ नहीं है। ये बयानिया है सारा, कोई तीसरी बात नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। इसलिए इन चीज़ों, आज PDM है इस मुल्क को बचाने के लिए। आज मुल्क मुश्किल में है, लोग परेशान हैं। अगर अपोजिशन अपना किरदार अदा नहीं करेगी फिर क्या करेगी? इसलिए ये बातें सियासत में हर रोज़ बातें होती हैं। ख्वाजा साहब ने बिल्कुल कहा, उन्होंने वजाहत भी कर दी कि मेरे ज़ाती ताल्लुकात थे, मैंने ये बात कह दी, उन्होंने माजरत भी कर ली, बात ख़त्म हो गई। नवाज शरीफ साहब कब तक वापस आएंगे? नवाज शरीफ साहब
जी आप सप्लीमेंट्री कर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी के हवाले से केस की समाअत होने वाली है, तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इतनी मुश्किल पेश क्यों आ रही है? एक वारंट की तामील ही तो करानी है, मियाँ साहब या उनके कोई भी जो वहाँ पे स्टाफ है वो वारंट गिरफ्तारी वसूल क्यों नहीं करते? देखिए, मैं हाई कोर्ट की जगह बयान नहीं दे सकता, लेकिन मियाँ साहब इलाज के लिए गए थे, इलाज करवा कर वापस आएंगे। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत के पास भी हैं, पूरे पाकिस्तान के सामने हैं। उनको पढ़कर जिंदगी, सेहत, ये सबसे ज़रूरी बातें होती हैं। वो पहले भी मुल्क से बाहर थे, वापस आकर जेल चले गए थे, अब भी इलाज की गर्ज से गए हैं। हुकूमत ने, अदालतों ने इजाज़त दी है, जब इलाज मुकम्मल हो जाएगा वापस आ जाएंगे। इलाज क्यों मुकम्मल नहीं हुआ, ये सारी बात मेडिकल रिपोर्ट में जो 2 बड़े मुस्तनद डॉक्टर्स ने लिखी हुई है उसको पढ़ लें। आखिरी क्वेश्चन सर, ये बताइएगा कि अरशद मलिक की जो वीडियो है, क्या उसका कोई पार्ट 2 भी है या जितनी वीडियो थी सारी आ चुकी है? देखिए, अरशद मलिक की वीडियो जज के जो असरात थे वो आपके सामने हैं। उनको उनको इस नौकरी से निकाल दिया गया, लाहौर हाई कोर्ट ने निकाला है। अब उनके फैसले, बात उनके फैसलों की करें कि हम उनके फैसलों में कितना यकीन कर सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम अदालतों में अब क्या यकीन करेंगे? इस नैब की क्या हैसियत है, नैब की अदालतों की क्या हैसियत है? असल सवाल तो ये है। अरशद मलिक की दूसरी वीडियो हो, तीसरी हो, 20वीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। ये फैसला हो गया, अदालत ने कर दिया, 7 हाई कोर्ट के जजेस ने किया कि ये बात दुरुस्त है, इसको नौकरी से निकाल दिया, उसके फैसले बरकरार हैं, उसकी बात करें। भाई साहब, आप सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के, आप नहीं समझते कि जमहूरी तसलसल के लिए आप खुद भी मेंबर पार्लियामेंट है, और कहाँ की जमहूरियत के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं? जब पार्लियामान के दरवाजे बंद हो जाएं, जब पार्लियामान में पाकिस्तान के अवाम की बात ना हो सके, जब हमें यहाँ आकर आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में अवाम की तकलीफ की बात करनी पड़े, तो फिर बात सड़क पर ही होगी। अब PDM बात सड़क पर करेगी। बहुत शुक्रिया।